welcome you to today's Watch Night service, the last day of the year. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ साल के आखिरी दिन पर और आज की वॉच नाइट सर्विस में। आज की सर्विस का शुरुआत करने से पहले मैं बाइबल में से कुछ पढ़ना चाहूँगी। बिफोर वी बिगिन टुडेज सर्विस, आई वुड लाइक टू रीड टू यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ Ecclesiastes, chapter 12. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light, and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain, when the keepers of the house tremble, and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim, when the doors to the street are closed, and the sound of grinding fades, when men rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint, when men are afraid of heights and of dangers in the streets, when the almond tree blossoms and the grasshopper drags himself along, and desire no longer is stirred. Then man goes to his eternal home, and mourners go about the streets. Remember him before the silver cord is severed, or the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring, or the wheel broken at the well, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Meaningless, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Not only was the teacher wise, but also he imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. The teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true. The words of the wise are like goads, their collected sayings like firmly embedded nails given by one shepherd. Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. This is the word of God. This year has been very different for all of us. But the scripture clearly says that no matter what happens around us, we need to keep God's commandments. इस साल बहुत अजीब चीज़ें हुई, ये साल बहुत अजीब रहा, लेकिन परमेश्वर हमें एक ही बात बताता है कि जो भी हो हमारे आसपास, हमें परमेश्वर की कमांडमेंट्स को रखना है और हमें परमेश्वर से के भय में हमेशा आगे चलना है। May I now request Pastor Man Kumar to lead us into the opening prayer. मैं निवेदन करती हूँ पास्टर मन कुमार से कि वो आए और हमारे लिए प्रारंभन प्रार्थना करें। आइए हम नए साल के लिए शुरुआत के प्रार्थना करेंगे। सब लोग सिर झुकाएंगे। मान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर होने दे ये 31st नाइट प्रभु वॉइस नाइट हम सब के लिए बहुत शुभ हो, असल हो। और प्रभु आज के ये आराधना शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथ में सौंपते हैं। और खुदा बाप लीड करने वाले तेरी बेटी के साथ और प्रभु परमेश्वर वचन बोलने वाला उन सब को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आज के इस इबादत को शुरू से लेकर अंत तक तेरे नाम की महिमा होने दे। जितने लोग भी प्रभु परमेश्वर आज के इस सभा को देखते हैं, इस नाइट को जाग कर देखते हैं, खुदा बाप उन पर तेरी करुणा कृपा रहे और नया साल सबके लिए बहुत आयत से आशीषमय होने पाए। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Shall we now all sing together our opening hymn, How Great Thou Art? आइए
हम सब मिलकर पहला भजन गाएं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। कितने
It is now time to hear the testimonies of how God has worked in the life of His children. अब समय है कि हम टेस्टिमनीज देखें और सुने कि किस तरह प्रभु ने अपने बच्चों के जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी को पता है, सारांश रास्ते में ऑटो वाले को मिला था। उसके दोनों पैर की हड्डी टूट गया था और उसको ऑटो वाले ने हॉस्पिटल लेकर गया और उसके बाद सफदरजंग में उसका ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पर जब शुरू में लेकर गए थे तब तो पुलिस केस बोल के किसी ने भी हाथ लगाने नहीं मान रहा था, लेकिन डॉक्टर परमेश्वर ने एक डॉक्टर नितिन को वहाँ पे हमारे लिए भेजा, जो सारांश को सब ट्रीटमेंट के लिए हेल्प किया। उसके बाद वहाँ पे हमें जान पहचान के भी डॉक्टर मिल गए, जिन्होंने वहाँ पे टेस्ट वगैरह करने के लिए, हर चीज़ के लिए सारांश को बहुत मदद किया। सारांश का 7-8 महीने वहाँ पे इलाज चला। इवन कोरोना के टाइम पे भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, तब भी हमें वहाँ पे डॉक्टर नितिन, डॉक्टर करण और बहुत सारे उनके जो डॉक्टर बीके चोपड़ा के टीम था, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और वहाँ के जो स्टाफ नर्स वगैरह थे, उन लोगों ने भी हमें बहुत हेल्प किया। और मेन ये था कि उसका जो ऑपरेशन हुआ था वो भी सक्सेस हुआ। उसके बाद उसको सितंबर में उसके होटल में फिर से उसको बुलाया था क्लासेस के लिए। उस टाइम पे उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आने के लिए बोला था, लेकिन मैं प्रार्थना में ही उसको रखा हुआ था मैंने। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने भी उसको प्रार्थना में रखा और उसको जो मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए पहले आनाकानी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका हृदय खोला। डॉक्टर जो वहाँ के HR थे उनका, और उन्होंने सारांश को मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे दिया। और उसके बाद वो अपने होटल में फिर से ये अपना उसमें वापस जा सका और सब कुछ उसका ठीक हो गया अभी, और अच्छे से अभी कर रहा है वो। और आपको मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो डॉक्टर और जो उसके लिए जिसने भी हेल्प किया है, उन सभी को आप अपने दुआओं में याद रखें। और विशेषकर सारांश को भी आप दुआओं में याद रखें कि वो आगे के आने वाले दिनों में भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए और परमेश्वर को धन्यवाद ही रहे। इन सब चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी का, जिन लोगों ने मंडली ने भी हमें बहुत प्रार्थनाओं में और हमें यूथ ने भी ब्लड वगैरह देने में सहायता किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग चर्च। मैं आज आपके साथ अपने जीवन की गवाही को पेश करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इस 2020 को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मेरे परिवार के लिए इसे आशीष में बनाया और हमारी कैसे उसने सहायता और मदद करी हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसका वचन हमें कहता है कि उसके लोगों के लिए हर एक बात से भलाई उत्पन्न होती है। जैसे कि लिखा है रोमन 8:28 में, वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स for the good of those who love him, who have been called according to his purpose। कि जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए हर एक बात से वो भलाई उत्पन्न करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस आयत ने हमारे जीवन में हमें हमेशा, इस आयत ने हमें एनकरेज किया और हमें संभाले रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब उस दिन के लिए प्रार्थना करती हूँ, बताना चाहती हूँ कि 3 मार्च को जब मेरी मम्मी घर में ही गिर गई थी और उनके हिप की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, हड्डी टूट चुकी थी उनकी, और ना वो हिल सकती थी ना डुल सकती थी। बहुत मुश्किल था उन्हें हॉस्पिटल ले जाना भी हमारे लिए, और बड़ी मुश्किल के साथ हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। और जब पता चला कि उनके हिप की बोन में, दोनों हिप की बोन के अंदर बीच में क्रैक आ गया है, और हम बहुत डर भी गए थे, बहुत तकलीफ हो रही थी सुन के कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी भी बहुत डर गई थी कि प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ, इस ओल्ड एज में क्यों मुझे इतना दुख मिला। परंतु हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि उसका हाथ हर वक्त उनके पर बना रहा, हर वक्त प्रभु ने उन्हें संभाले रखा। और जैसे कि यशाया 46
4 में वो कहता है कि इवन दो योर ओल्ड एज एंड ग्रे हेयर, आई एम ही हु विल सस्टेन यू, आई हैव मेड यू एंड आई विल कैरी यू, आई विल सस्टेन यू एंड आई विल रेस्क्यू यू। कि खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल के पकने तक, सफेद होने तक मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, तुम्हें उठाए रखूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, सचमुच वो उसने उन्हें उठाए रखा, उन्हें संभाले रखा। प्रतिरोज वो उनको शिफा देता था, प्रतिरोज उनके अंदर उनकी चंगाई की तब्दीली उनके अंदर होती जाती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परंतु वो समय बहुत तकलीफ में था, बहुत दुख में था कि हम उनका दर्द नहीं देख पाते थे। बहुत दर्द होता था उनको देखकर कि ये क्या हो गया हमारे साथ। परंतु मैं खुदावंत का धन्यवाद देती हूँ कि उसने उन्हें संभाला, उन्हें उठाए रखा, अपने हाथ को उनके ऊपर हर वक्त उसने बनाए रखा। रात दिन प्रभु ने उन्हें नहीं छोड़ा, जैसा उसका वायदा कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ऐसे ही खुदावंत का मैं धन्यवाद देती हूँ। सचमुच इस लॉकडाउन के समय में प्रभु ने बहुत तकलीफ में हम लोग थे और प्रभु ने हमारी मदद करी, जबकि हम उन्हें ना डॉक्टर के पास ले जा सकते थे ना कुछ कर सकते थे। सिर्फ डॉक्टर ने उनके लिए पेन किलर दे दिया था और कहा था नहीं, हॉस्पिटल में नहीं लाना उन्हें। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदावंद ने अपने वचन के अनुसार, जरमाया 33:6 के अनुसार प्रभु ने उन्हें शिफा इनायत करी। जैसे लिखा है कि आई विल ब्रिंग हेल्थ एंड हीलिंग टू इट, आई विल हील माई पीपल and will let them enjoy abundantly and peace and security। कि मैं उनको इलाज करूंगा, उनको चंगा करूंगा। सचमुच खुदावन ने उनका इलाज किया और उन्हें चंगाई दी। क्योंकि हम जब देखते हैं कि सब तरफ से डोर बंद हो गए थे, कहीं कुछ नहीं कर सकते थे हम, बस प्रभु का हाथ था जिसने उनका इलाज किया और अपने वायदे को उसने उनके जीवन में पूरा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ कि आज उस साल को पूरा होने से पहले ही उसने उनको शिफा दी और उनके बिस्तर से उन्हें खड़ा किया कि आज वो चलती हैं, फिरती हैं और अपने कामों को करती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो कि वो हमारा जिंदा और सच्चा खुदावंद है। यीशु का धन्यवाद हो। आमीन। वास्तव में प्रभु ने मेरे जीवन में इतने उपकार किए, इसलिए मैं आज यहाँ पर अपनी साक्षी देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे पिछले 60 वर्षों तक संभाला और इस साल के आखिरी महीने में उसने मुझे अपने 60 साल पूरे करने का मौका दिया, जीवन दिया और मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे साथ रहे। यद्यपि मैंने 1 साल पहले VRS लिया इस चर्च में आने के बाद और कई बार मैं निराश हुई, परंतु प्रभु ने मुझे संभाला और जिसने मुझे बनाया उसने याद दिलाया कि जिसने मुझे बनाया और जिसने मुझे आज तक संभाला है वो आगे भी मुझे संभालेगा। मेरा भविष्य उसके हाथ में है। प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ उन्होंने मेरे पति पास्टर जी को, जब वो बीमार थे उनको ठीक किया अद्भुत रीति से और वो भी बहुत निराश हो गए थे, परंतु प्रभु ने आशा बंधाई और बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्होंने दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वस्थ है और हमारी आर्थिक रूप से भी आवश्यकताओं को पूरा किया अद्भुत रीति से, जो हमारी समझ से बाहर है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन्होंने, प्रभु ने हमें अपने विवाह के 37 वर्ष पूरा करने में सहायता करी। आप प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उसने मुझे यही सिखाया कि हम किसी भी स्थान में रहें, कहीं पर भी बोलाए हमें, किसी भी कलीसिया में, ये उसकी इच्छा के अनुसार है, हमारी इच्छा या लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं। और हमें मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं सेवा करनी है, परंतु केवल अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है और उसकी इच्छा को पूरा करना है। जब हमने ये समझा, अभी तक उसने सहायता की है और हमारा विश्वास है वो आगे भी संभालेगा। हम बस केवल यही बार बार में ये पद मेरे सामने आता और मुझे हिम्मत दिलाता है। यहाँ पर लिखा है विलाप की 3:22 और 23 में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ग्रेट इज दाय फेथफुलनेस। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे अवसर दिया कि मैं उसकी गवाही दूँ। प्रभु की केवल स्तुति हो। धन्यवाद।
देती हूँ, उसने मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बेटियों के परिवार को संभाला। और इस समय मैं आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद दिन्छु यो समयको निम्ति, यो समयको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। र यो यस्तो महामारीको समयमा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभयो र उहाँले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरको वचनमा यस्तरी लेखेको छ, लुका 19:10 यस प्रकार लेखिएको छ, मनुष्यको पुत्र हराएकोलाई र खोज्न आउनुभएको। त्यसैले मेरो परिवारलाई, मलाई परमेश्वरले खोज्नुभयो, उहाँको अनुग्रह र दयाले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभयो, त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। साथै मेरो मण्डलीलाई सबैले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँहरूले प्रार्थनाको गर्दाले आजसम्म हामी सुरक्षित छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै हृदयबाट धन्यवाद दिँदछु। हाम्रो परिवारबाट हाम्रो धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो पुरा सम्पूर्ण मेरो साइमन, रेबिका, सविता, मेरो तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो नयाँ सालको निम्ति 2021 को निम्ति धन्यवाद दिन्छु कि हाम्रो सुख सन्देश शुभ भएको होस् र तपाईँलाई यो नयाँ साललाई धेरै धेरै मुबारक र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। म नतराको तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट ह्याप्पी न्यू इयर प्रदान गर्दछु। हजुरलाई जय मसीह, सबैलाई जय मसीह। It is now time for a video presentation to see the activities that the church has been involved in the year 2020, such as giving food to the needy, taking care of the poor. अब समय है कि हम इस साल अपोस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च ने जो कार्य किए, जैसे कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना, खाना खिलाना, गरीबों की सेवा करना, ये सब हम वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा देखें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस साल के लिए कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा। विशेष करके धन्यवाद देते हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जब
पूरे सब जगह बंद हो गया था और लेबरर्स और जितने भी लोग परेशान थे उनको खाना नहीं पहुंच रहा था। तो चर्च की ओर से कुछ मेंस प्रेयर फेलोशिप के मेरे भाई लोग हमारे साथ जुड़ के हम लोगों ने चर्च में खाना बनाया और फिर हमने पैकेट्स बना के लोगों में बांटा। और प्रॉपर पुलिस के साथ थोड़ी सी तकलीफ हुई क्योंकि पुलिस हमको रोक रही थी जाने में, तो हमने प्रॉपर पुलिस के साथ मिलके हमने काम किया और सेक्टर 3 की झुग्गियों में भी हमने खाने के पैकेट्स बांटे, ड्राई राशन दिया वहां पे। उसके बाद हमने बस स्टैंड्स पे जहां पे लेबरर्स थे और जो लोग फंस गए थे, जो ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, उनको भी हमने खाना बांटा। रैन बसेरा जो है सरकार के जो ISBT के पास में है, उसमें भी हमने खाना बांटा और परमेश्वर की स्तुति महिमा करी। और ये सब के लिए मैं अपने कलीसिया के लोगों का और मेंस प्रेयर फेलोशिप के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। उन लोगों ने पूरा समय दिया। हम सब लोग मिलते थे हर शनिवार को और खाना बनाते थे। और ड्राई राशन के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत लोगों ने चर्च के मेंबर्स का, क्योंकि चर्च लॉकडाउन में है तो हम लोग अब तक के किसी का शुक्रगुजारी नहीं कर पाए हैं, पर इस वीडियो के माध्यम से, इस थैंक्सगिविंग सर्विस के माध्यम से इस साल के आखिर में हम परमेश्वर का और आप सबों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मदद करी और हम लोगों ने 1,40,000 से ज्यादा का सामान, करीब 2 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूशन का हमने सामान बांटा है और 1,40,000 रुपए चर्च के लोगों ने अपनी धनराशि में से दान दिया है। जिस प्रकार प्रोवर्ब्स में लिखा है कि दान देने से आप परमेश्वर को देते हैं और उसका उतना ही वो डबल आपको देता है। तो हम सभी आपके इस धनराशि और दान के लिए शुक्रगुजार है। और इस आखिरी जब इस दिन पे हैं तो ये धनराशि का हमारी यही कामना है कि परमेश्वर आपको दुगना तिगना और चौगुना फल दे। और इस साल के लिए परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। जितने भाई थे जो इस काम में लगे हुए थे, किसी को भी आज तक कोरोना कुछ नहीं हुआ और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ था। और जितने भाई लोग थे सब सुरक्षित रहे। खाना बांटे हमने, लोगों के संपर्क में आए, परंतु किसी को कोरोना का सिम्टम्स भी जनरेट नहीं हुआ। तो आप सबों के लिए ये एक थैंक्सगिविंग का मैसेज है। जो इस सर्विस को देख रहे हैं, हम दिल से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। Miss Andrea Wilson will now present a special number for us. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है
रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हो May I request Mr. Daniel to come and do the Bible reading for us today? मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर डैनियल से कि वो आए और वचन में से हमारे लिए पढ़ें। Tonight's scripture is taken from Isaiah chapter 8, verse 11 to 20. A call to trust the Lord. The Lord has given me a strong warning not to think like everyone else does. He said, don't call everything a conspiracy like they do, and don't live in dread of what frightens them. Make the Lord of heaven's army holy in your life. He's the one you should fear. He's the one who should make you tremble. He will keep you safe, but to Israel and Judah, he will be a stone that makes people stumble, a rock that makes them fall. And for the people of Jerusalem, he will be a trap and snare. Many will stumble and fall, never to rise again. They will be snared and captured. Preserve the teaching of God and trust the instruction of those who follow me. I will wait for the Lord who has turned away from the descendants of Jacob. I will put my hope in him. I and the children the Lord has given me serve as signs and warnings to Israel from the Lord of heaven's army who dwells in the temple of Mount Zion. Someone may say to you, let's ask the medium and those who consult the spirit of the dead. With their whispering and muttering, they will tell us what to do. But shouldn't people ask God for guidance? Should the living seek guidance from the dead? Look to God's instruction and teaching. People who contradict his word are completely in dark. The scripture ends here. Amen. अब फिर से समय है कि हम टेस्टिमनी के द्वारा देखें कि किस तरीके से प्रभु ने अपने बच्चों के जीवन में काम किया। It is now time for us to hear a few more testimonies to see how God has worked in the life of his children. जय मसीह सबैलाई। आज म प्रभुको नाममा यो एउटा गवाई दिइरहेको छु कि 2020 मा प्रभु आज यो 2020 को अन्तिम महिनाको लास्ट दिन हो र 31 मा प्रभु मानिसहरूले आफ्ना मोज मस्ती गरेर दिनहरू बिताउँछ। तर हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने परम परमेश्वरले यो साल यस्तो कठिन अनि दुख परेशान अनि मौतको साल थियो जो संसारभरि मानिसहरू हजारौं टाइममा मान्छेहरू मरेको छ। हाम्रो देशमा पनि दिन प्रतिदिन कति मान्छेहरू मरेर गयो, कतिको हालत बुरा खराब भएको थियो, कति मान्छेले लकडाउनको कारण खान नपाएर कति बिमारीले मर्यो, कति बिमारले तडपिरहेको थियो अनि कति मान्छेहरूको पास नोकरी थिएन। तर परम परमेश्वरले भन्दछ यशायाको पुस्तक 45 को अध्याय 2 मा लेखेको छ, हे पृथ्वीमा बस्ने दूर दूरमा बस्ने मानिसहरू म कहाँ फर्केर आऊ त तिमीहरूले उद्धार पाउनेछ अनि तिमीहरू बस्नेछ किनभने म अकेलै परम परमेश्वर हुन् अनि मलाई छोडेर कोही दुसरो छैन भनेर वचनमा लेख्दछ। साँच्चै नै म यो वचनलाई हृदयमा चाहिँ याद गर्दछु अनि हामी दुखमा सुखमा पनि थियौँ तर परमेश्वरले हामीलाई बचायो। हाम्रो आसपासमा कति मान्छेहरू दिन प्रतिदिन मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा हुन्थ्यो, मान्छेहरू मरेर गयो तर प्रभुले हाम्रो परिवारलाई मलाई मेरो पुरा परिवारलाई बचाएर राख्यो। र त्यस समय यो कोरोना सुरु भएको थियो त्यतिखेर म पनि मलाई पनि बिपी हाई भएर अस्पतालमा म एडमिट भएको थिएँ
अनि त्यतिखेर त्यही दिन कोरोनाको फर्स्ट पेसेन्ट आएको थियो भन्ने थियो। तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु कि मैले कुनै पनि केही दबाईहरू खाइनँ, तर परमेश्वरको नाममा त्यो नर्मल दबाईले नै म ठिक भएँ। अनि मलाई सबै मेरो परिवारले और साथीहरूले ने भन्छ कि शायद आपको भी लक्षण वैसे ही था, लेकिन कोरोना ने आपको छूकर आपको लगने नहीं मिला, आपको छूकर तो चले गया है। तो साँच्ची नै हो, मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो कोरोना बिमारले मलाई गिराउनुलाई जरुर आएको थियो, तर मलाई त्यसले गिराउन सकेन, किनभने मैले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा ल्याएको थिएँ र त्यो परम परमेश्वर, त्यो हामीलाई बचाउने परमेश्वरलाई मैले आफ्नो जीवनमा ल्याएको थिएँ, आफ्नो परिवारमा। त्यसकारण परिवारमा अनि मलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो र म जतिको उमेरको बहुत सारा मान्छेहरू बिमार पनि भयो, लडे पनि, तर परमेश्वरले मलाई आजसम्म कहिले पनि लड्न दिनु भएन। अनि आजसम्म म जीव छु र प्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु कि जब जब हामी परमेश्वरको करिबमा बस्छौँ त हाम्रो सबै कुरो प्रभुले ठिकठाक गर्नुहुन्छ। दुःख परेशान कष्ट आउँदा पनि प्रभुले मलाई मेरो परिवारलाई बचाउनु भयो। अन्त म सदा प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने मसँग कोही धन दौलत थिएन, कोही शान्तिको जरिया थिएन, तर मसँग एउटा ठुलो सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो मेरो परिवारसँग, र त्यही परमेश्वरले हाम्रो परिवारलाई सम्हाल्नु भयो। लकडाउनमा मलाई, मेरो नानीहरूलाई सबैलाई सम्हाल्यो र म धन्यवाद गर्दछु। यो लकडाउनको समयमा हामीले दूर दूर गएर अस्पतालमा मान्छेहरूलाई त हामी सेवा गर्न सकेनौँ, तर हामीले 3-4 महिना त्यो स्ट्रिट डगहरूलाई हामीले एनडीटीभीको त्यो न्युज सुनेर मेरो बेटा म पुरा दिन गएर हामीले 14-15 कुकुरहरूलाई खाना खिलाउँथ्यो। र साँच्ची नै त्यो लकडाउनको बेलामा प्रभुको करिब बसेर बहुत सारा वचनहरू सिक्नु सके, प्रभुको गानाहरू सिके र प्रभुको करिबमा आउनु अझै सिके। र जब जब हाम्रो जीवनमा सङ्कट कष्टहरू आउँछ हामी डराउनु हुँदैन। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ कि म अकेला प्रभु हो, अरू मलाई छोडेर कोही पनि छैन। साँच्चै नै आज संसारमा मानिसहरू प्रभुदेखि परमेश्वरदेखि टाढा गइरहेको छ। त्यसकारण संसारभरि परमेश्वरले उनीहरूलाई वापस ल्याउनुको लागि यो ताडना दिएको। त अहिले पनि अगर हामीले सम्हालेनौँ भने परमेश्वरले योभन्दा ठुलो ठुलो मुसिबत पनि जीवनमा आउनेछ। र प्रत्येक अन्धकारमा बाँच्ने मान्छेहरूले परमेश्वरको ज्योतिलाई देखिसक्नु भएको छ आजभन्दा 2020 साल अगाडि, तर आजसम्म तिनीहरूले प्रभुमा आएको छैन। कति प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू पनि भट्केर गएको छ। त म यही भन्दछु कि परमेश्वरलाई वक्त हुँदा नै आफ्नो जीवनमा ल्याउनुहोस् अनि उद्धार पाउनुहोस् र प्रभुले बचाउनुहुन्छ। म धन्यवाद गर्छु कि परमेश्वरले म र मेरो पुरा परिवारलाई सम्हाल्नु भयो। कोटी कोटी धन्यवाद गर्छु अनि आशा गर्छु कि तपाईँहरू सबै प्रत्येक मानिसहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि प्रभुमा बहुत सारा आशिषहरू पाउनुहोस् नयाँ सालमा। तपाईँ सबैलाई नयाँ सालको लागि मुबारक होस्। Hello everyone, I am Rajit and I want to share a short testimony on giving thanksgiving to God on how He has blessed me and my family during last year 2020. Last month on 21st, I and my family, my wife, my younger daughter, tested positive for COVID-19 virus. Though it was mild symptoms and we had isolated in our house for treatment, but on the 25th, my oxygen level came down to about 85-86 and I had fever 101 plus, which was not coming down. So to avoid any more complication, I shifted to the hospital for the treatment, and God put His blessings upon me that I recovered and was discharged within a week, totally recovered and fit. And even my wife and my daughter, they recovered during the treatment at home, and I am thankful to God that we are now fine. And we would like to especially thank all my family, my friends, the church members who were praying specially for me and my family. Thank you so much, dear ones.
And once again, I want to give thanksgiving to God that He had helped us, especially to be safe and sound. Thank you so much. आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं जिसमें परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत कार्य किया है और परमेश्वर ने किस तरीके से मुझे बचाया, मैं आपको गवाही देना चाहता हूं। जब मुझे कोरोना हुआ था नवंबर के टाइम पे, मुझे और मेरी वाइफ को, तो उस समय में कोरोना के टाइम में हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई। जब बीमारियां और ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ती जा रही थी कोरोना का, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, उल्टियाँ हो रही थी और उस समय में हम बहुत चिंता भी कर रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि हम कैसे, हमारा क्या होगा, कैसे चीज़ें सोच करके। तो जब हमने कोरोना के विषय में बहुत चिंतित किया, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था और मैंने लोगों को बताया और मैंने बोला कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए चर्च के लोगों ने, सभी लोगों ने प्रार्थना की और लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं और चिंता मत कीजिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बोलिएगा। तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हाथ बढ़ाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें मुहैया कराई और अपने लोगों को भी तैयार करते हैं वो, तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और घर पे रहते रहते मुझे खाना भी छूट गया था और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 85 तक चला गया था और मुझे साथ में मेरे लंग्स में भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, जबकि कोरोना के साथ साथ निमोनिया बन गया मेरे लंग्स में और मुझे बहुत दिक्कत होने लग गई थी। सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, रात को 2-2 बजे पूरी रात भर खांसियाँ होती थी। और उस समय में परमेश्वर मेरे साथ था और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई दी। और मेरे पास ये नहीं कि खर्चे भी कैसे करना है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से सोच के हॉस्पिटल ना जाने का, लेकिन परमेश्वर ने सब चीज़ें मुहैया कराई और मेरा हॉस्पिटल में सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया और एक चवन्नी नहीं लगी, मेरा खर्चा नहीं हुआ इस बीमारी के लिए। मेरे वाइफ को और मुझे दोनों को चंगाई दी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और पूरी रीति से चंगाई थी और आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आप लोग, आपकी भी प्रार्थना है जो मेरे साथ थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। May I now request Pastor Sharon Sawant to lead us into a special prayer for all those people who've lost their loved ones, for all those people who've lost jobs, for all those people who have been suffering and have seen a lot this year. मैं अब निवेदन करती हूँ पास्टर शारन सावंत से कि वो आए और उन सभी लोगों को दुआओं में उठाएं जिन्होंने बहुत कुछ इस साल में सहा है, अपने अजीज़ों को खोया है, नौकरी खोई है और परेशानियों का बहुत सामना किया है। अजीजों, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और जैसा कि हम 31st की वॉच नाइट को मनाने जाते हैं और ये आखिरी दिन इस साल का हम ऑब्जर्व करते हैं, एक साथ हम हैं, तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ इस पैंडेमिक समय के अंदर खोया। कई जो लोग थे शोकित हुए क्योंकि उनके परिवार में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी, मगर हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि इस 31st को भी हम परमेश्वर की महिमा को करें, दुआओं को करें और उन सारी बातों को याद रखें कि परमेश्वर ने कैसी भलाई हमसे की। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी महानताओं, आपकी भलाइयों के लिए जो नाम बनाम हमारे जीवन में देते हैं, आपकी आशीष बरकतों के लिए जो सदैव आप हम पे फरमाते हैं पिता। और हम दुआ चाहते हैं और हम मेहनत करते हैं खुदा कि जैसा कि आपने इस आखिरी जो ये महीना है इस साल का और आखिरी दिन 31st को पिता आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपस में संगति को करें, दुआओं को मांगें और नए साल के लिए शुक्रगुजारी आपको दें पिता। और पिता हम खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो लोगों ने अपना इस काल के अंदर, इस ईयर के अंदर कुछ ना कुछ खोया है
और चाहे वो बहुत कीमती क्यों ना हो, चाहे वो कुछ क्यों ना हो पिता, मगर हम उनके दुख में भी शरीक हैं। और पिता हमें एक मन दे कि हम जब उनके लिए प्रार्थना करें तो आपका पवित्र आत्मा का कंफर्ट, आपके पवित्र आत्मा का पिता जो शांति, जो भलाई है उनके साथ युगानुयुग बनी रहे। और पिता हम दुआ चाहते हैं ऐसे परिवार के लिए कि पिता जो शोकित हैं, जो दुखी हैं और जो आशा रहित है पिता, उनके साथ रहें, उनको आशीषित करें यीशु राजा। और पिता हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया, आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके जीवन में आ जाए पिता। और ये साल पिता आने वाला जो है 2021, पिता उनके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीषों को लाने वाला हो। और पिता उनका जीवन आपके नाम को महिमा दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कोविड से जो ग्रसित होकर जो मरे और जो आपके अंदर सो गए पिता, उनके शोकित परिवारों को भी आप पिता तसल्ली बख्शें और आपकी पवित्र आत्मा उनके साथ साथ बना रहे। हम एक बात के लिए और आपके शुक्रगुजार हैं कि जो हमारा चर्च है पिता, आपने हर मेंबरान को इस सफर तक आपने संभाल कर रखा। हर एक चर्च के मेंबरानों को, हर एक चर्च के लोगों को आपके हाथ में देते हैं। उनको आप आशीषित करें, उनको भी आप संभाल के और पिता बहुतायत से भरा पूरा रखें। और ये जो नया साल 2021 है पिता, आने वाले समय में पिता जो आने वाला है कुछ घंटों के बाद या कुछ समय के बाद, हमारे जीवन में आपकी प्रेजेंस को लेके आए। और 2021 यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जीवन के अंदर उन्नति को, प्रगति को और आपके आशीषों को लाने वाला हो। और पिता आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं और आपके नाम को मुबारक कहें। और हम में से जितने जने हैं पासबान पिता, रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वस्त का परिवार पिता, रेवरेंड पास्टर मन कुमार राय और पिता पास्टर शारून साहब, उनकी फैमिली को भी हम आपके हाथ में देते हैं पिता। धन्यवाद आपने ये मौका दिया कि हम आपके मनादी इस चर्च को पिता चर्च के द्वारा कर सकें और सेवकाई को कर सकें पिता। धन्यवाद देते हैं, आगे भी हम करें और आगे भी आपके नाम को महिमा मिले। और पिता हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं, बिशप साहब, उनके परिवार वालों को भी हम आपके हाथ में देते हैं। उनको भी आप आशीषित करें और नया साल उनके जीवन में आशीष कारण ठहरे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गांव के लिए और हर एक छोटे से छोटे शहर को भी हम आपके हाथ में देते हैं पिता। 2021 सबके लिए आशीष का बाइस हो। और धन्यवाद देते हैं पिता तमाम पिता बातों के लिए, जब आपकी जो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में आपने पूरी करी और भलाइयों के साथ आपने हमें संभाल के रखा। धन्यवाद देते हैं और आपसे क्या मांगे, आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मुबारक नाम होकर मांगते हैं, आमीन। It is now time for the Bible reading, for which may I request Arpan Tigga to lead us into the Bible reading in Hindi and Mrs. Savita Sunar to lead us into the Bible reading in Nepali. मैं निवेदन करती हूँ अर्पण टिग्गा जी से कि वो हिंदी में बाइबल रीडिंग करें और मिसेस सविता सुनार से कि वो नेपाली में बाइबल रीडिंग करें। मत्ती 6:25 से 34। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। वह ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो वे अल्पविश्वासियों तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा।
इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। वचन के पढ़े और सुने जाने में हमें आशीष मिले। प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आजको बाइबल पाठ गर्नेछौँ फिलिपी 4 अध्याय 6 देखि लिएर 8 सम्म। आओ हामी बाइबल पाठ गरौँ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होस्, र समझले नै बिहाउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसँग छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपयामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यही नै कुराका विचार गर। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा र सुनाइमा आशिष मिलोस्। आमेन। Let's hear a special video song now. That's really sing it out. It is now time to hear the message by Uncle Rajkumar. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This past year has been very difficult for most people of this world because of the pandemic. And the next year doesn't promise to be any better from a worldly point of view. But the fact is, we belong to Jesus. We live by His promises and we hold on to God's amazing faithfulness. God never changes. In Malachi chapter 3 verse 6, the Lord says, I, the Lord, do not change. And He is a God who is faithful to all His good promises. In the book of Joshua, 23rd chapter verse 14, we read about how
Joshua tells the Israelites, you know with all your heart, every good promise God gave you has been fulfilled, not one has failed. So as we look forward to the new year, we hold on to God's faithfulness and every promise in the scripture for us to be people who rise above every difficult situation in life. The Bible has instructions for us to follow, promises for us to hold on to, and standards for us to live up to. And one such standard is a life free of anxiety and fear. Yes, it's possible for us to live a life free of anxiety and fear because on the cross, the Lord took away every work of the evil one, and unhealthy fears are a consequence of sin. The book of Genesis, chapter 3, verse 10, we read how when man sinned against God, that's the time man became afraid. There's only one fear we should have, a reverent fear of God. All unhealthy fears are not from God. And God wants us to be a people who don't fear the future, but rather trust in the Lord for the future and rise above every difficulty in life. Now, anxiety is a very common human trait, very common among humans. So when I tell people we can live a life free of anxiety, many Christians also ask me, how can anyone live a life free of anxiety? After all, we are humans. And every human being has anxieties and fears. But the fact is, when we belong to Jesus, we are not ordinary humans. We are peculiar humans. We live by the Word of God, including the promises of God. In the Bible, there are 366 verses which say, fear not, fear not, fear not. Do not fear, fear not. 366 verses there are. Not only that, there are 7,487 promises. 7,487 promises for every believer. Because in Christ, every promise of God is ours. 2 Corinthians 1:20 says, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. No matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. So as we live by the promises, we'll rise above every difficulty in life. Now in the Old Testament, we read about how when the prophet Isaiah was prophesying, there were people around him who had fears. Even Isaiah had fears. So in the book of Isaiah, chapter 8, verse 11 and 12, we read, Isaiah writes, the Lord spoke to me with a strong hand upon me, warning me not to follow the ways of the people. Don't call conspiracy what they call conspiracy. Do not fear what they fear. What were they fearing? They were fearing the future. As many people today, they fear 2021. Pandemic is there. A second wave of coronavirus is there. What will happen to us? What will happen to our children? What is the future for us? We worry about the future. I mean, so many people. And when people worried about the future, even Isaiah was worried. And the Lord spoke to him with a strong hand upon him. And God gave him a solution. Isaiah chapter 8, 19-20. When men tell you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? To the law and the testimony of the law. If they don't speak according to the word, they have no light of dawn. What do people normally do, especially in our country, especially, when they worry about the future? They want to find out the future. So what do? They go to astrologers, medium spiritists to find out the future. Because they worry about the future. Same thing happened in Israel, in Judah, in Jerusalem where Isaiah was living, 720 years before Christ. They had anxiety and fear about the future.
there was idol worship, there were superstitions, things very, very common to our country. And the Lord tells them, why are you fearing? Go to the law and the testimony of the Lord. Don't go to mediums and spirits to whisper and mutter. Should not people inquire their God? Why consult the dead on behalf of the living? So the solution for anxiety of the future was going to the testimony of the law. What's the testimony of the law? What did the law of Moses testify to? When Christ entered the world and was given the name Jesus or Yeshua, in John chapter 5, 39 and 40 we read, he tells the Jews, you diligently study scriptures because you think by them you have eternal life. These scriptures testify about me, yet you refuse to come to me to have life. The testimony of the scriptures is the Lord Jesus Christ, the coming of Jesus. How when he enters the world, he would destroy the works of the devil, free mankind from sin and the consequences of sin, including unhealthy fears. They were required to look to the coming Christ. Not only the Israelites were told through Isaiah, they looked to the coming Christ. When David had fears, all kinds of fears he had. In Psalm 34 verse 4, David writes, I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. All my fears. I sought the Lord. Who was the Lord that David sought after? Who was David's Lord in the Old Testament time? When Christ entered the world, at one point of time, he asked the Pharisees, the book of Matthew, chapter 22, 41 to 44, what do you think about the Christ? Whose son is he? The Pharisees say, the son of David. Then Jesus says, then how is that David, speaking by the Holy Spirit, calls him Lord? And Jesus quoted Psalm 110 verse 1, where David writes, where he says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet. If David calls him Lord, how can he be his son? So who was David's Lord in the Old Testament time? There was the Christ, the coming Christ. The Lord said to my Lord, the Lord the Father said to my Lord, the Christ, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet. So who is my Lord? The Christ. Much before Christ entered the world, David, being a man after God's own heart, he knew in the heart of God there's a plan to send the Messiah into the world. And can you imagine, much before the Messiah entered the world, David called upon the Messiah. By the way, Messiah in Hebrew and Christ in Greek both mean the same, the anointed one. And the anointed one entered the world 2000 years ago, was given the name Yeshua, or Jesus as we say in English, or Yesu in Hindi, Yesu Masih. And that word Yeshua means the one who saves. Saves mankind from sin, from the devil and all the works of the devil, including unhealthy fears. So much before Christ entered the world, David called upon the Christ who delivered up all his fears. 2000 years after Christ came, lived a sinless life, offered his body on the cross to deliver us from all works of the evil one. Why are we still having fears? He delivered us from all fears. One reason could be Jesus is not really Lord of our lives. Now, very interestingly, when the Lord told Isaiah, don't fear what they fear, meaning people around Isaiah, they were fearing, Lord told Isaiah also, with a strong hand upon him, don't fear what they fear. The solution was to look to the
testimony of the law, who is Jesus Christ. In the New Testament, you will find there are Christians who are having fears. They should not have these unhealthy fears. Christians. So Peter writes to them in 1 Peter chapter 3, verse 14. In 1 Peter 3:14, Peter is quoting the same Old Testament verse which God told Isaiah, don't fear what they fear. Now he's addressing Christians, fellow believers. Do not fear what they fear, but in your hearts set apart Christ as Lord. Christ as Lord. He should not only be our Savior, he should be our Lord, which means he must have total lordship in our lives. Then we'll have confidence that every promise in the scriptures are for us. With regard to anxiety, it's very, very clear in the Bible. God spoke to his people in the Old Testament. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. That promise was given to the exiles living in Babylon around 589 BC. They were overrun by the Babylonians, and thereafter they were 70 years exiled in Babylon. In that context, Jeremiah writes to them from Jerusalem to encourage them. God spoke to him and write to them. And in the course of the letter he wrote to them, this is mentioned. God says to these people living in exile, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. An encouraging word. Now every promise God gave to whoever it was in the Old or New Testament is ours because we belong to Jesus. In Galatians chapter 3 verse 16 we read, Galatians 3:16, the promise is spoken to Abraham and to his seed. Scriptures don't say and to seeds, meaning many people, but and to his seed, meaning one person who is Christ. Verse 29 of the same chapter, Galatians 3:29, we read, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to the promise. If you belong to Christ, all of us as Christians belong to him because we have been bought by his blood. We've been purchased by his blood. And if we belong to him, we are heirs according to the promise. Abraham's seed. So every good promise of God is ours. And just one promise God says, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. That's why Jesus said after he entered the world, when he ministered in this world, he told the people listening to him, when he spoke, when he gave the Sermon on the Mount, in Matthew 6:25, do not worry about your life. Do not worry. Simple instruction. Do not worry. When God says do not, and we do, what is it? It's disobedience. In fact, it is sin. When God says do not tell a lie, and we tell lies, it's sin. When God says do not covet, and we covet, it is sin. When God says do not worry, and we worry, it's also sin. So the question comes, if worrying is sin, will God punish me for the sin of worrying? Simple answer, God does not have to punish us when we worry because we are punishing ourselves. So when it comes to 2021, please don't worry. God says, I know the plans I have for you. They are the best plans, not just good plans. So as we acknowledge Jesus as Lord of our lives, we live for him. As we live for him each and every day in the future, each and every day we live for him, we'll have confidence of God working out his perfect plans for us.
Also in the book of letter of Paul to Philippians chapter 4, 6 to 8, very well-known passage. 6th and 7th verse all of us know very well, I'm sure. 8th verse we don't practice. It goes like this. Philippians chapter 4, 6 to 8. Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds on Christ Jesus. And then 8th verse says, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is the right, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, excellent, praiseworthy, think about such things. In other words, when something comes to our mind about causing us to be anxious, it's supposed to be people not anxious about anything, not the future, not people, not circumstances, nothing at all. On the other hand, the things that cause us to be anxious, we give it to God. Say, Lord, you handle it, Lord. We pray, we petition, we thank Him. And we'll enjoy His peace thereafter. Peace and anxiety don't go together. Peace is a gift God has given us. The word peace means oneness. The Greek word is eirene. Eirene. We are one with God through Jesus Christ. One with Him. Unity as peace. As long as our minds are upon the Lord, we preserve this peace. Isaiah 26:3. Isaiah writes, you keep in perfect peace him whose mind is stayed upon thee. As we love God's word and obey God's word because we love God's word, we'll have great peace. In Psalm 119 verse 165, we read, is written, great peace have they who love your law. Nothing will make them stumble. Nothing will make us stumble. People worrying about the future. Tomorrow, what's going to happen? What about the pandemic? What about my children's future? God, don't worry about anything. Your life is in my hands. He has the best plans for us. So trusting in God, we go ahead in life, holding on to the unchanging nature, a God who is faithful to all His good promises. Now, I'm sure all of us, when you have an anxious thought, we give it to Him and say, Lord, you handle it, Lord. What do we think about after that? Do we follow 8th verse where it says, finally, what is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy? Think about such things. What do Christians do? When they get anxious, they give the problem to God. How do you handle it, Lord? You take care of it, Lord. Then we think about the same thing all over again. We think about the possible problem, which may not take place at all. By the way, most things we worry about never happen. Most things we worry about never happen. We assume it's going to happen and we get anxious about it. Imagine a problem in the future, we lose the peace today. May not happen at all. Once you give it to God, leave it with Him. What do Christians do? They imagine a problem, they give it to God and take it back again. Lord, this problem, I think I'm going to have this problem, Lord. I'm giving it to you, Lord. I'm praying to you. Take it, Lord. Handle it, Lord. After giving it to God, what do? We think about the same problem all over again. And after giving the problem to Him, we tell Him, Lord, handle it, Lord. Then, what do we think about the same problem? And then what do we say? Lord, how are you going to handle it, Lord? First question. Second question, when are you going to handle it, Lord? For both questions, no answer from God. Whatever answer there is already there in the Bible. What's the answer? The battle is mine, it's not yours. Mine is a battle, not yours. You don't have to know how I'm going to handle it, when I'm going to handle it. But then we can't keep quiet. We'll give God a time limit. Lord, in 1 year,
you must handle this problem. 6 months, 7 months, 8 months, 9 months passes. You still have anxiety. Then what do Christians do? They go on a 3-day hunger strike and call it fasting. Once you give it to God, forget about it. Get busy doing what He wants you to do. We read in the Bible about how story of Jacob and Esau. Esau's planned to kill Jacob after the father Isaac passes away. His mother came to know about it. Rebecca, she tells Jacob, go away from here. Your brother Esau is contemplating trying to kill you after your father's days are over. 27th chapter of Genesis, 41 to 45. And Jacob goes away, waiting for Mama to give news that Esau's anger subsided. When Esau's anger subsided, I'll send for you, you come back. You go away from here. When the time comes, when brother Esau is okay, I'll call for you, you come back. He goes, he spends 20 years there, acquiring wives and children and men servants, maid servants, cattle, donkey, a lot of possessions. After 20 years, God tells him, Genesis chapter 31 verse 3, go back, land of father's relatives, I will be with you. You go back. No news from mommy that Esau's anger subsided. No word from God about Esau's anger. The instruction was, you go to your uncle Laban. When Esau's anger subsided, I will send for you and you come back. No word from mother for 20 years, no word. Which means he's thinking, Esau was still angry. But God says you go back. God didn't say anything about Esau. He just said you go back, I will be with you. Praise God, Jacob goes back. But while going back, he's anxious. Will Esau kill me? Is he still angry? What will he do to me? But he goes back, he obeys God, he goes back. While going back, he sends messengers to Esau, go and tell him, I've got men servants, maid servants, cattle, donkeys. Trying to hint that I'll give you something. Messengers come back and they say, Esau is coming and 400 people are with him. 400 people. The book of Genesis, 32nd chapter, 6 and 7 we read. When the news comes to Jacob, in great fear and distress, he divides the possessions. He's making plans how to meet his brother. Great fear and very, very worried about brother to him. Great fear, distress. Because Esau is coming and 400 people are with him. And then he does one thing very good, the best thing, he prays, cries out to God, tells all his burdens to God, and then he makes plans again. That's a funny thing, no? After telling God, we still make plans. Not based on God's word, but our own plans. He makes his own plans, divides the possessions, how to go and meet Esau. So much of anxiety. And what happens? Ultimately, the anticlimax. As he approaches Esau, he sees Esau coming. The book of Genesis, 33rd chapter, verse 4 says, Genesis, 33rd chapter, verse 4, Esau comes running, hugs him and kisses him. Hugs him and kisses him. All the anxiety was waste. Because God had changed Esau's heart. Unnecessarily, Jacob was angry. Was anxious, not angry. He was anxious. Great fear and distress. Ultimately, Esau comes, hugs him and kisses him. And then he tells his brother Esau in 10th verse, looking at you is like looking at the face of God. Looking at you is like looking at the face of God. Such was his transformation. He was so relieved to see Esau hugging him. He thought he was going to kill him. Now the moral of the story is based on Proverbs chapter 26 verse 7, 16 chapter verse 7, Proverbs 16 7. When a man's ways are pleasing to him, he makes even his enemies live at peace. When a man's ways are pleasing to God, he makes even his enemies live at peace with him. So when you walk in the ways of God,
Don't worry about what people do to you. Don't worry about circumstances. Future may seem bleak for the world. For us, God will work out His plans. He'll work out His best plans for us. We must be busy doing His general will. For us, each one of us, the general will, to walk in His ways, to have fellowship with Him, to read the scriptures, follow scriptures, have fellowship with Him, have fellowship with God's people, find out God's specific will, and be busy doing God's general and specific will for each one of us. He'll teach us. He'll have to teach us His will, His plans for us. So no anxiety for a Christian. Anxiety is not for a Christian. Simply because God says, I have the best plans for you. Do not worry about your life. God's promise are for you and me. Just hold on to the promise. Some people talk about claiming the promise of God. I don't believe in claiming promises, because you only claim something that is taken away from you. If it was already yours, why do you have to claim it? You only have to keep it. And by holding on to the promises, we will rise above every difficult situation in life. We'll participate in the divine nature. In 2 Peter chapter 1, 3 and 4 we read, 2 Peter chapter 1, 3 and 4 is written, Peter writes, His divine power has given us everything we need for life and godliness, through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, meaning the glory and goodness of God, He has given us the very great and precious promises, promise of God,
Shall we all sing together our congregational hymn, O God, our help in ages past, which is found in the English hymnal number 28 or Hindi में 46. God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow of your throne, your saints are dwelt secure. Sufficient is your arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, our earth received a free. From everlasting you are God, to endless years the same. A thousand angels in your sight are like an evening gold. Short as the watch that ends the night before the rising sun. Time like an ever-rolling stream bears all its sons away. They fly forgotten as a dream dies at the opening day. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our God while life shall last, and our eternal home. May I now request Reverend Pastor Biswas to give us the announcements and lead us into the closing prayer and benediction. Dear friends, we are grateful to the Lord for giving us this time. प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो उसने ये मौका दिया है। आज इस साल की आखिरी आराधना हमने करी मिडनाइट सर्विस में या वॉच नाइट सर्विस में। अब थोड़ी समय के बाद 2020 इतिहास के पन्नों में चला जाएगा, लेकिन हमारे सामने जो नया साल होगा वो है 2021। और अभी चंद मिनट्स के बाद हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। Dear friends, I want to share with you a promise from the Word of God, and that I am to read in English and in Hindi. जो प्रतिज्ञा प्रभु आपको देना चाहता है नए साल के लिए वो है भजन संहिता 128 1 और 2 पद। Psalm 128 verses 1 and 2। भजन 128 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे जो 2021 के लिए आप सबों के लिए नए साल की प्रतिज्ञा है। इंग्लिश में लिखा है, Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. यहाँ लिखा है भजन 28 1 और 2 पद में, क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा।
भजन संहिता 128 1 और 2 पद, साम 128 1 and 2 वर्सेस। प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए इस साल के लिए 2021 के लिए प्रतिज्ञा है और मैं चाहता हूँ कि हम इस पर ध्यान दिए रहें। कल यानी जो 1 तारीख अब शुरू हो जाएगा, 1 जनवरी 2021, हमारे AMC चर्च में 3 आराधनाएं होगी। सुबह 8:30 बजे, सुबह 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे। डियर फ्रेंड्स, टुडे और 1st of January 2021, we'll have 3 worships in our church at 8:30 a.m., 10:30 a.m. and 12:30 noon. 8:30 a.m. worship is for the people who are living in 5-kilometer range from church. जो सुबह की आराधना है 8:30 बजे उन लोगों के लिए है जो कलीसिया से, चर्च से 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। फिर जो दूसरी आराधना है 10:30 बजे, उसमें जो लोग आएंगे वो रहते हैं 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे में। Those who are living from 6 to 10 kilometer range from church, they will attend the second worship. And the third worship, that is 12:30, जो आखिरी आराधना है 12:30 बजे, उसमें 11 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले लोग हैं। और तीनों आराधनाएं हमारी जो होंगी ये कंबाइन होगी, इसको हम याद रखेंगे। मित्रों, 3 तारीख को भी हम आराधना करेंगे हमारे कलीसिया में और 3 आराधनाएं होंगी। सुबह 8:30 बजे, 10:30 बजे और दोपहर को 12:30 बजे। इसके बाद की आराधना के बारे में और प्रोग्राम्स के बारे में आपको हम बता देंगे। इसके पहले कि हम आखिरी प्रार्थना करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सब भाई बहनों का जिन्होंने आज अपनी गवाही दी, खास गीत गाए इस मिडनाइट सर्विस में। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस साल हमारे जीवन में कठिनाइयाँ रही, परेशानी रही, लेकिन प्रभु ने हमें हर वक्त संभाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। दिस ईयर वी हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ एक्सट्रीम टाइम, डिफिकल्टीज, कंफ्यूजन्स, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स गॉड इज विद अस एंड वी वांट टू थैंक एंड प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर आज की सुंदर आराधना के लिए और इन गवाहियों के लिए और हमारे प्रिय भाई डॉक्टर राजकुमार के लिए जो वचन उन्होंने दिया, इसके लिए प्रभु हर एक के लिए आपकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जो आशीष हमने प्राप्त करी गवाहियों को सुनने के द्वारा और आज के वचन के द्वारा, प्रभु हमारे हृदय के अंदर बना रहे प्रभु, और हम आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु। जबकि हम थोड़े क्षणों के बाद एक नए साल में प्रवेश करते हैं 2021, आप उसकी तैयारी दें प्रभु। धन्यवाद देते वचन के लिए जो आपने दी, जो वचन का प्रॉमिस आपने दिया प्रभु, प्रतिज्ञा दी, भजन 128 और उसके 1 और 2 पद, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उसको मनन करने में और उस पर चलने में मदद करें, सहायता करें। कलीसिया के तमाम लोगों को, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, जवान हैं, माँ बाप हैं, कलीसिया के हर एक सदस्य को जो नेपाली चर्च में है, हिंदी कांग्रेगेशन में है और इंग्लिश कांग्रेगेशन में है, हर एक पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। इस साल आपने जो हमें अवसर दिया आराधना करने का, उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। बड़ी दीनता नम्रता के साथ ये सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। लेट अस नाउ आल्सो रिसीव द बेनेडिक्शन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की फाकत शराकत हम इस हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। May the coming year 2021 bring to you abundant blessings of God, health and happiness. As we come to the end of our today's Watch Night service, we have special New Year greetings by our Pastor Sharon Savant, Pastor Man Kumar, Sunday School Superintendent, and the presidents of the Apostles Methodist Church bodies such as the MYF, MYAF, the MMF and the WSCS. अजीजों, जैसा कि हम सब नए साल के अंदर कुछ क्षणों के बाद कदम रखने जा रहे हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मैं पास्टर शारोन सावंत, मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को
मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर करे कि इस नए साल के अंदर हम सब के ऊपर परमेश्वर की मेहरबानी और परमेश्वर की बरकतें बनी रहे और परमेश्वर उनके साथ भी रहे जिन्होंने 2020 में बहुत कुछ खोया और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके खेदित मन को एक हर्ष के अंदर बदल डाले। और नए साल के लिए भी हम प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे कि 2021 जो है हम सब के लिए आश्चर्य कारण हो जाए और परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को हम सब महसूस करें। मेरे जो स्टाफ है उनकी तरफ से भी आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं and we wish you a very 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 blessed happy new year to you all and may God bless you abundantly and also may God shine upon you. Praise God for that and also once again God bless you abundantly. क्रिस्ट यीशु के नाम में सबको मुबारक, जय मसीह की। मैं छोटा सा वचन पढ़ूंगा। आइए हम, यह लिखा है यहोशू 1:9 में लिखा है, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसी तरह यशायाह 52:12 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा तुम्हारा आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारा पीछे रक्षा करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आयु से आशीष करे और इस नया साल आप सबको परमेश्वर बहुत सारे आशीष करे। जिस तरह विगत साल, गुजरा हुआ साल आपके साथ परमेश्वर रहा, हर परिस्थिति में, पैंडमिक समय में कितने लोगों को नौकरी नहीं है, उनके साथ भी परमेश्वर रहा। जो दुखों में, दर्द में, पीड़ा में, बीमार में, परमेश्वर पूरा 2020 आपके साथ रहा और ये 2021 भी आपका साथ रहेगा। और परमेश्वर वो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। सचमुच परमेश्वर आप सबको, आपका परिवार को, हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नया साल की बधाई हो, मुबारक हो। सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। सबको जय मसीह की। Dear parents, Sunday school children and teachers, 2020 has been a difficult year for all of us, with children stuck at home due to COVID-19 lockdown and shutdown of schools. The parents and teachers and children had to adjust to online classes, remote examinations, no meeting with friends, and no outdoor sports. Still, God provided us technology through Zoom classes where we could feed on God's word through online vacation Bible classes, Sunday school classes, and Christmas program. Moving into 2021, we are assured by the promise of God in Psalm 91:2. He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. We have the assurance that God is always in control and we have His protective arm around us. Pastors, parents, English, Hindi, Nepali के बच्चे सबको नया साल का शुभकामनाएं। मैं WSCS की प्रेसिडेंट होने के नाते तीनों पास्टर्स और चर्च के हर एक मेंबर को नए साल 2021 की परमेश्वर के नाम से शुभकामनाएं देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ जो पिछले साल खोया है वो इस साल भरपूर तौर से पाएं। मेरी यही कामना प्रत्येक मेंबर के लिए रहेगी। परमेश्वर की आशीष हर एक के ऊपर ठहरी रहे। आमीन। हैप्पी न्यू ईयर। मिसेस वनीता विल्सन। जय मसीह की। अपोस्टल मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। On behalf of Methodist Young Adult Fellowship, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. By the gentle touch of His grace, you will find happiness on your path. His love gives us confidence to embrace a great new year.
Have a blessed 2021.